Hey, very good morning to everyone. How are you all? कैसे हो आप सभी? Doing good? Chaliye, with all the goodness, let us continue our chapter. Yesterday, I find very few participants in the chat box, so I don't know whether you went through the chapter discussed yesterday or not. दोबारा से फिर मैंने ग्रुप में ये भेज दिया था कि हाँ इस मुद्दे को जरूर सुन लेना. We didn't discuss much. We had a very short class in the evening yesterday, hardly for 30 to 35 minutes, and there we talked about the 4 points. Am I audible to you clear? आवाज आ रहा है मेरा clear? Very good morning, good morning. Just Piyush. Vaishnavi, good morning. चलिए. So before I begin this part, before I begin the rest of the chapter, there is some question. Okay, there are some questions for you to answer. I correct myself. Chaliye, so let me begin with a very simple one, and expecting you all must know it. Expecting that if you don't know it now itself. Because I don't think after we go through the chapter, after we complete the chapter altogether, there should be anything unknown. The questions which is there in the text should not be unknown. Okay, nothing wrong, Mahi. Fine. So I found a very less number, and it is good enough that we are coming live. We are getting together here on YouTube, and you get material even if you miss it. Had it been the Zoom class, it would have been very tough for me to provide you the missed material. है ना. यदि जून में होता, जूम में क्लास होता तो फिर मुश्किल हो जाता देने में. ओके चलिए तो बता दो. टेल मी वंस अगेन. आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. कल शाम को थे वो तो डेफिनेटली आंसर देना मुझे. व्हाट वाज द बर्थडे प्रेजेंट फॉर फादर? व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट grandmother suggested and Kezia prepared made for father? What was the birthday gift? क्या था बताओ. अगले सप्ते पापा का बर्थडे आने वाला है. Exactly. So one. Okay, waiting for others to answer. If you know the answer, definitely there must be some answers here. Very good morning, Subham. Yeah, pin question is the correct answer. और वैष्णवी, you have corrected yourself क्योंकि कल आपने शायद कार्ड बताया था, birthday card, right? Exactly. So pin cushion is the correct answer और ध्यान में रखना है. तो बस मुझे सुनोगे मैटर क्लियर हो जाएगा. और क्वेश्चंस नहीं लिखेंगे माही, बस एक था इसीलिए पेन क्वेश्चन बोल रहा है, नॉट क्वेश्चंस बट क्वेश्चन. ओके fine. So pin cushion was the birthday gift. Now the one who attended class yesterday, again more expectations from you. आपसे कुछ उम्मीद ज्यादा है. बता दो. What did she fill inside the cotton cloth which she stitched 3 sides? 3 साइड स्टिच कर रखी थी. चौथे साइड स्टिच करने से पहले उनके अंदर कुछ डालना जरूरी था. So what was the material that she filled? हाँ वैष्णवी राइट. ऐसे करेक्ट करते रहना है खुद को. बताओ. What was the material that she filled inside that fine piece of cotton cloth जिसको वो चौथे साइड भी सी के वो पिन कुशन एक बर्थडे गिफ्ट अपने पापा के लिए बनाना चाहते थे. शीट्स ऑफ पेपर. सो टू हर उनको क्या लगा इट इज सिंपली अ स्क्रैप. स्क्रैप हम लोग वेस्ट मटेरियल भी बोल सकते हैं, है ना. जैसे लोहा का काम हुआ तो बचा हुआ जो लोहा है दैट कैन बी सेड स्क्रैप्स. पेपर का काम हुआ जो वेस्ट पेपर्स है दैट कैन बी सेड स्क्रैप्स. बट दे वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट शीट ऑफ पेपर्स, है ना. तो पेपर कुछ ज्यादा संख्या में था. इट वाज केप्ट इन ऑन द टेबल. ओके ऑफ हर मदर्स रूम. केजिया के माँ के रूम में था. तो फाइन शीट ऑफ पेपर. एंड व्हाई द पेपर्स वर इम्पोर्टेंट? वो पेपर इम्पोर्टेंट था क्यों? What was there so important about the paper?
or why the papers were called important, which is torn into pieces, which is stuffed into the birthday present that she had decided to gift to her father, why the seeds were said to be important, और उस पेपर के लिए फिर पूरा घर परेशान था। शाम को घर पे एक बड़ा बवाल हो गया, है ना। पापा ने सभी को डांट लगाया, सर्वेंट से क्वेश्चन किया गया, और फाइनली पता चला कि उन पेपर्स को तो केजिया ने फाड़ दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ के। वो अपने बर्थडे गिफ्ट पिन कुशन बनाने के लिए उसके अंदर स्टफ करके फिर फोर पेड भी सी दिया। Exactly. So what the paper was about? It was about her father's gift speech for the port authority. Rightly answered. सही है वैष्णवी खुशी, because the papers are great speech were for the great speech for the port authority. Exactly. So the answer you have written here in the chat box is absolutely correct, though there are only two, but it is correct. तो वो जो पेपर था जिसको फाड़ के उसने भर दिया अपने गिफ्ट में, that was the speech, पापा का लिखा हुआ स्पीच था पोर्ट अथॉरिटी के लिए। So the papers were important, पेपर इसलिए important था, है ना। अब वो पेपर जब मिसिंग हुआ तो शाम को परेशानी पड़ी, सभी से पूछा गया, एंड फाइनली वेरी इनोसेंटली Kezia answered that yes, she saw the paper when mother asked her. मम्मी ने जब पूछा केजिया से about the paper, और मम्मी ने नेगेटिवली पूछा कि तुमने तो वो पेपर्स नहीं देखा होगा ना, कुछ इस अंदाज में पूछा कि वो पेपर्स तुमने नहीं देखा होगा, बट शी नोडेड हर हेड, यस मैंने देखा है। मैंने देखा ही नहीं है, मैंने फाड़ा भी है, और फाड़ा ही नहीं है, मैंने उसे एक कॉटन क्लोथ के अंदर भर भी दिया है ताकि मैं पापा को सरप्राइज दे सकूं, और पापा तो बहुत सरप्राइज हुए होंगे, है ना। एग्जैक्टली पापा इतने सरप्राइज हुए, इतने खुश हुए कि बदले में उनको अपनी बेटी को मारना पड़ा। किस चीज से? रूलर से, है ना। स्केल से पिटाई खाना पड़ा उनके उस पिंक पाम में, स्केल का मार्क्स। सो एग्जैक्टली तो अब जब एक छोटी सी बच्ची अपने पापा से इतना डर रही है, पापा को एक जायंट लाइक फिगर समझती है, अब उनसे मार भी खाना पड़ा तो मन में और भी ज्यादा नेगेटिविटी आ गया उनका, है ना। नाउ सी कंप्लीटली डिसलाइक्स हर फादर, और अपनी ग्रैंड मदर को रात को बोलती भी है, सो व्हाई गॉड मेड फादर्स, गॉड फादर्स बनाते ही क्यों हैं? दे आर सिंपली गुड फॉर नथिंग, दे आर ऑफ नो यूज, दे वुड हैव मेड ओनली ग्रैंड मदर्स, ओनली ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि ग्रैंड पेरेंट्स अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को हमेशा दुलारते पुचकारते रहते हैं, एंड चिल्ड्रन लाइक द, बच्चों को वो पसंद होता है। सो देयर शी सेड व्हाई गॉड मेक फादर्स, बड़ा दुखी हो गए। तो ग्रैंड मदर ने बोला योर फादर इज वेरी मच टेंस्ड, वरीड, एंड दस एनी एक्सप्लेनेशन वुड नॉट वर्क, कोई एक्सप्लेनेशन, कोई बात अभी उनको समझाने के लिए यदि बोला जाए, दैट वोंट वर्क, वो काम नहीं करेगा। Okay, so sleep well tonight, the next morning you will forget everything, and father too will be calm and quiet next day. ऐसा ग्रैंड मदर ने केजिया को बोला कि अभी सो जाओ, कल तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी सब कुछ भूल जाओगे। सो आंसर मी इन यस और नो, डिड केजिया फॉरगेट द हैपनिंग ऑफ द लास्ट नाइट? Did she forget, as grandmother told that she would forget everything? So did she forget the happening of the last night? No. In fact, she never forgot. उससे आगे वो कभी भूल ही नहीं पाई, भुला ही नहीं पाई। तो इसके बाद जब भी पापा अब उनके सामने में आते थे तो और भी वो डर जाती थी, सहम जाती थी, एकदम हाथ पीछे करके चेहरे पे एक लाल फ्लश, चेहरा लाल सा हो जाता था उनका, राइट। तो ये अब पहले से बहुत ज्यादा क्लोज तो थे नहीं, एक जायंट लाइक फिगर समझते, एक मॉन्स्टर समझते अपने पापा को, है ना। और अब ये दूरी थोड़ी और बढ़ी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन बीत रहा है, सी वॉज गेटिंग मैच्योर्ड, वो मैच्योर भी तो हो रही है, और ऐसा कोई सिचुएशन मिला नहीं था वो इंटीमेट क्लोजनेस जिससे साबित हो सके। बट देयर इन द डिस्कशन टुडे वी विल गेट टू द सिचुएशन,
हम लोग अभी के डिस्कशन में जानेंगे, है ना, कि ऐसा क्या हुआ जो उस लिटिल गर्ल का ओपिनियन चेंज हो गया ना। कि एक तरफ वो बोल रही कि भगवान बनाते ही क्यों है, और दूसरी तरफ अभी थोड़ी देर में बोलेगी कि वो देखने में बस बड़े हैं लेकिन उनका दिल तो बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही छोटा है। ओके, एंड सी गेट्स प्रॉपर केयर फ्रॉम नंबर ऑफ पर्सन। छोटी बच्ची यदि नाराज हो जाए तो उनको केयर करने, देख रेख करने वाले बहुत है, लेकिन पापा का केयर करने वाले कौन है। तो ऐसे ही हम सब भी जब छोटे रहते हैं तो अपने पेरेंट्स को लेके एक ओपिनियन बना, लेकिन जैसे जैसे मेच्योरिटी आता है, व्हेन वी अंडरस्टैंड देयर सैक्रिफाइसेस फॉर अस, है ना, जब हम लोग उनका सेक्रीफाइस समझते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल डेटा को रिसर्च का नतीजा बताता है कि जब तक बच्चे अपना होश संभालते हैं, बड़े होते हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स अपने लाइफ के एग्जैक्ट डेटा, यदि मैं मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, तो 4 से 5 साल का नींद अपने बच्चों के लिए वो कुर्बान कर चुके होते हैं। Okay, such is the sacrifice, and this sleep is something very nominal. They even sacrifice more than that, and in need, in requirement, they can even go beyond the limitation. They can go beyond the limit. Okay, for the children's sake, अपने बच्चों के लिए। So later on they realize, they understand। नहीं तो कहीं कहीं पे बार बार छोटी छोटी बातों को लेके हम उनसे नाराज हो जाते हैं, feel bad for them, we feel very much interrupted, and we even think ill of them, उनके बारे में बुरा भी सोचते हैं। Okay, so let us see. We will continue. In the discussion yesterday, we had covered up to point number 8. So our discussion would be 9 to the last, 9 to 12. तो बस 4 पॉइंट ही है, और बुक अपने साथ में रखना, थोड़ा रीडिंग टेस्ट हो जाएगा। और हाँ, आज का होमवर्क दे दो, क्योंकि लास्ट तक पता नहीं अभी जितने हो उतने रहोगे या नहीं, मुझे सुनोगे या नहीं, वैसे मैं ग्रुप में भी लिख के डाल दूंगा। द होमवर्क फॉर यू इज द लिसनिंग, सॉरी, रीडिंग टेस्ट। आप लोगों को इस चैप्टर से जो भी आपके पसंद का पैराग्राफ हो, टेक अ पैराग्राफ, रीड एंड रिकॉर्ड इट, सेंड मी द रिकॉर्डिंग। आपका रीडिंग टेस्ट मुझे सुनना है, मतलब आप पढ़ते कैसे हो ये मुझे सुनना है। तो आप अपना बेस्ट देना, आप 4 5 5 ट्राई करके देख लेना, ठीक है। तो एक पैराग्राफ इसी चैप्टर से, कोई भी आप छोटा चुनना चाहते हो, कम से कम 4 5 लाइन का, मतलब 1.5 से 2 मिनट का ऑडियो तो मुझे भेजना, इतना तो भेज सकते हो ना। 1 1.5 मिनट, 1 से 2 मिनट, चलो 1 मिनट तक का भी आप कर सकते हो। बट एक पैराग्राफ कोशिश करना पूरा करें जिसमें मल्टीपल पंचुएशन हो, कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, ये सभी हो तो और ज्यादा बेहतर होगा, एक्सक्लेमेशंस हो, ठीक है। तो मुझे आपका रीडिंग सुनना है, जैसे मेरा रीडिंग तो आप लोग हर रोज सुनते हो, Senate, अभी भी सुनोगे। आई एम गोइंग टू रीड द अपकमिंग पैराग्राफ, बट आई वांट यू टू सेंड मी योर बेस्ट रीडिंग पार्ट, ठीक है। नहीं, ग्रुप में फिल्टर करके मैं सेंड कर दूंगा, क्योंकि आप लोग तो ग्रुप में एक्सेस नहीं कर सकते हो, सो यू विल सेंड मी इंडिविजुअली, और आप सभी का नहीं सुन पाओगे, लेकिन मुझे जो लगेगा हाँ दिस इज बेस्ट, ये औरों से बेटर है, उसे मैं आप अपने ग्रुप ही नहीं, मैं सभी के ग्रुप में ही उसे वायरल करने वाला हूँ। मीन्स दैट विल बी द मॉडल रीडिंग, ठीक है। क्लास 10 वालों को भी मैंने यही काम दिया था, तो मुझे रिकॉर्डिंग मिला नहीं ज़्यादा, है ना, अफसोस है। तो उम्मीद है आप लोगों से मुझे थोड़ा ज़्यादा रिकॉर्डिंग मिलेगा, और देख देख के पढ़ना है। और यहाँ पे यदि आप नहीं कर रहे हो, पिछड़ रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं आप पढ़ने से डर रहे हो, तो डरोगे तो कैसे होगा। मैं थोड़ी आपका मटेरियल पूरे पब्लिक में हाईलाइट करने वाला हूँ जिसमें करेक्शंस की ज़रूरत है। करेक्शन सभी को चाहिए, बट मुझे जो लगेगा या दिस कैन बी द मॉडल रीडिंग फॉर अदर्स, सो फॉर द सेक ऑफ इंस्पिरेशन आई एम गोइंग टू सेंड दैट टू अदर ग्रुप्स, ओके। और मुझे सभी ग्रुप में एक्सेस है तो मैं भेज सकता हूँ। लोगों को अपना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। आई विल लिसन, आई विल डिसाइड, एंड आई विल फॉरवर्ड दैट एज अ मॉडल रीडिंग टू अदर ग्रुप्स, है ना। और टेंशन नहीं लेना है, यदि आपको लगे कि नहीं मेरा अच्छा है लेकिन आप मेरा आवाज मत भेजना, तो मुझे बस एक मैसेज नीचे कर देना, आई विल नॉट सेंड, ठीक है। सो दिस इज योर टास्क। हाँ, ओनली ऑडियो, ओनली ऑडियो, आप कहीं से भी रिकॉर्ड कर लो,
ठीक है, लेकिन कोशिश करना उसे बहुत ज्यादा वो फिल्टर वगैरह नहीं डालना है, इको नहीं डालना, कुछ नहीं करना, एकदम ओरिजिनल वर्जन, एज आई एम रीचिंग यू इन द मोस्ट ओरिजिनल मैनर, आई वांट यू टू रीड मी इन द मोस्ट ओरिजिनल वे, या एनी पैराग्राफ ऑफ योर चॉइस वेयर यू आर कंफर्टेबल. Okay, the paragraph you are comfortable with. Fine. So I test my reading daily. I want you, okay, to correct yourself in pronunciation. So reading is must. ये जरूरी है. Fine. Moving on. Coming to number 9, and here we will get to know some more characters. कुछ और हमें एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स मिलने वाले हैं. अब तक हमें 4 पता था, है ना? Kezia's father, mother, Kezia herself, and grandmother. So some more characters will be added. तो कुछ और कैरेक्टर्स ऐड होंगे, अभी ध्यान दो. ठीक है, कोशिश करना. एक्सटर्नल साउंड्स आएगा, थोड़ा थोड़ा सा जरूर आएगा. फाइन. तो पॉइंट नंबर 9. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag. In the evening, the father with the baby, Mao, on his shoulders, 2 little girls hanging onto his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. One saw the boys turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. So this is the merrymaking that Kezia saw from the gap of her fence. तो उनके घर का जो बाउंड्री है, फेंसिंग मतलब क्या, बाउंड्री हम लोग बोल सकते हैं. यदि बाउंड्री कंक्रीट नहीं है, सीमेंटेड नहीं है, लकड़ी का है, वुडन है, या फिर किसी तरह से टेम्परेरी शॉर्ट ऑफ बनाया गया, उसमें गैप तो रहेगा ना. सो केजिया सॉ फ्रॉम द गैप, उस थ्रू द गैप, उस गैप से होके केजिया ने देखा क्या, द टू द नेबर्स, द पर्सन्स रिसाइडिंग जस्ट बिसाइड. तो एक नाम आया है मिस्टर मैकडोनल्ड्स. ओके, मैकडोनल्ड्स का पिज्जा भी आता है. सो कीप इन माइंड मिस्टर मैकडोनल्ड्स. सो लीव्ड नेक्स्ट डोर, तो उनका पड़ोसी है, उनका नेबर है. तो मिस्टर मैकडोनल्ड को जब वो फेंस के गैप से देखी, व्हाट डिड सी फाइंड, उनको क्या दिखा, दैट द फैमिली मेंबर्स वर मेकिंग मैरी टुगेदर. सभी एक साथ मिलके मस्ती कर रहे हैं, और मस्ती करने के दौरान 5 बच्चे थे. मैकडोनल्ड्स हैड 5 चिल्ड्रन. ये आपका क्वेश्चन बन सकता है. ओके, ध्यान में रख, 5 बच्चे. जो सबसे छोटी वाली है ना, छोटी, वो कंधे पे बैठी हुई है, एंड her name was Mao. Okay, Mao, ध्यान में रखना, MAO. So Mao on his shoulders, उनके कंधों पे बैठे हुए. 2 little girls hanging on to his coat pockets. तो बड़ा सा कोट पहना हुआ, कोट का पॉकेट भी बड़ा बड़ा होता है, तो कोट पॉकेट्स को पकड़ के वो लटके, वो छोटे छोटे बच्चे है ना, और जैसे वो उनको घुमा रहे हैं. एंड द बॉयज, तो टर्न आता है. जो छोटे वाला है, जो सबसे छोटा है, वो तो दूध भात है. और दूध भात मतलब सभी में गेम खेलते समय होता है ना, यदि बराबर का संख्या यदि ना है दोनों टीम में, तो एक बच्चा होता था दूध भात. तो वैसे ही माओ यहाँ पे दूध भात है, वो सभी में रहेगा. वो बॉयज के टीम में भी है और गर्ल्स के टीम में भी है. तो गेम जैसे क्या लग रहा है कि पापा के पॉकेट में लटक के घूमना है उनको. माँ कंधे पे बैठी हुई है, सबसे छोटी है, तो दूध बात है वो. और अभी लड़कियों का टर्न है, गर्ल्स का टर्न है. तो वो पापा के कोट पॉकेट में लटके हुए हैं, घूम रहे हैं. और लड़कों ने क्या किया, बॉयज, दे टर्न द होज. होज मतलब हम लोग वो फ्लेक्सिबल ट्यूब पाइप को भी बोल सकते हैं. ठीक है, फ्लेक्सिबल पाइप, जैसे वो नायलॉन का पाइप होता है ना, फ्लेक्सिबल रहता है, कहीं पे भी लेके चले जाते हैं, बेंड कर सकते हैं, वैसा. तो अब लड़कों ने क्या किया, the 2 girls hanging onto his pockets ran round and round. तो hanging onto his coat pockets ran round and round the flower beds. Flower beds मतलब वो गार्डन बोल सकते हो, फूलों की क्यारियां जो लगी हुई है, तो उसके चारों तरफ घूम रहे हैं. लड़कियां पापा के कोट में लटके हुए हैं, और पीछे पीछे लड़के दौड़ रहे. तो 5 है. माओ जो कंधे पे है, 2 girls hanging on both sides of the coat pocket, and 2 boys running after them. और वो पानी का पाइप लेके उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं. तो बड़ा मजा आता है भीगने भिगाने वाला गेम खेल के.
Correct. सो दिस इज हाउ दे वर एंजॉइंग एंड केजिया ने ये सभी कुछ देख लिया पड़ोसी के घर में, तो खुद को रिलेट तो करेंगे ही ना, कंपेयर तो करेंगे। अब उनको लग रहा है कि इनके पापा कितने अच्छे हैं, राइट, बच्चों को कितना टाइम दे रहे हैं, खेल रहे हैं। तो अब छोटी बच्ची को ये नहीं पता है व्हाट इज द नेचर ऑफ वर्क। अब मैकडोनल्ड्स क्या काम करते हैं ये तो नहीं पता, बट इनके पापा तो मॉर्निंग टू इवनिंग और 6 days इन अ वीक थॉरली बिजी रहते हैं, राइट। तो सभी का वर्क ऑफ नेचर अलग अलग होता है, सभी का नेचर अलग अलग होता है ना। बट उन सभी तरह के नेचर के पीछे एक नेचर जो कॉमन है, एवरी फादर लाइक देयर चाइल्ड, है ना, लाइक हिज चाइल्ड। तो सभी पापा अपने बच्चों को चाहते जरूर हैं, बच्चों को रियलाइज होता है दैट दे डोंट लाइक और दे हेट, दे आर गुड फॉर नथिंग, दे आर यूजलेस, बट दैट टू एट ए पर्टिकुलर एज। वो एक उम्र तक ही ऐसा फील होता है, फिर थोड़ा मैच्योरिटी आएगा और फिर हम सभी समझ जाते हैं। तो सबका अपना अपना नेचर होता है, अपना अपना वर्क ऑफ नेचर होता है, ओके, नेचर ऑफ वर्क होता है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। सो दिस डिटरमिन्स, दिस डिफरेंशिएट्स। सभी एक जैसा हो जरूरी तो नहीं है, ये तो हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। So now Kezia फिर भी थोड़ा तो मन में बुरा लगेगा ना, and thus Kezia was feeling bad for that. Once he saw the boys turn the hose on him. Hose on him, तो hose आप वही रबर ट्यूब का सेंस ले सकते हो, नायलॉन वाला पाइप का सेंस ले सकते हो, टर्न कर दिया उनके ऊपर। एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। तो पाइप से भिगा के यदि बच्चे भागते हैं तो उसे पकड़ने के लिए फिर पीछे पीछे भागेंगे ना। So that game was going on. Then it was C. Then it was she decided there were different shots of father. इसे underline कर लो. Underline this statement. Then it was she decided there were different shots of fathers. Shots मतलब होता है type. SORTS. Sorts means types. TYPES. So there are different types of father. Suddenly, one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. ये केजिया के अपने घर का बात है। अचानक से एक दिन माँ बीमार पड़ गई और माँ को हॉस्पिटल लेके आना पड़ा, तो ग्रैंड मदर उनके साथ गई। तो अब ग्रैंड मदर घर पे नहीं है, मदर घर पे नहीं है, बचे कौन, ओनली फादर। और एक और कैरेक्टर यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, कीप इन माइंड द नेम। The little girl was left alone in the house with Alice the cook. So one more character, write it in your vocabulary, in your learning. Alice. अब घर पे बस एलिस है, कुक है ना, काम करने वाली है, कुक है, और फादर ही बचे हुए हैं। और मदर, ग्रैंड मदर दोनों ही हॉस्पिटल गए हुए, और उस रात वो नहीं आएंगे अपने घर। कारण कुछ भी रहा होगा, बीमारी कुछ भी रही होगी, बट दे नीड टू स्टे इन द हॉस्पिटल। सो दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, मीन्स देयर एब्सेंस वर ओके। उनका एब्सेंस सही था, कब, डे टाइम में, दिन के समय में। लेकिन रात के समय में छोटे बच्चों को अकेले रहने में या किसी के भी साथ रहने में परेशानी होती है। दिन के समय, दिन के रोशनी में तो वो कहीं पे भी रह लेते हैं, किसी के भी साथ रह लेते हैं। But that became troublesome during the night. So that was okay. Their absence was okay during the day. Okay, during the daytime, but it was troublesome during the night. But suddenly, sorry, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. ठीक है, लेकिन अब रात हुई, खाना पीना खिला के एलिस ने जब केजिया को उसके बेड पे लिटाया, तब वो बहुत ज्यादा डरी। सी वॉज सडनली वेरी मच अफ्रेड। अब उनको उस रात के अंधेरे से डर लग रहा है, क्योंकि केजिया का आदत क्या था, अपने ग्रैंड मदर के साथ, अपनी दादी के साथ सोने का, है ना। तो दादी उनको दुलारती थी, पुचकारती थी, कहानियां सुनाती थी, तो बहुत मजा आता था। लेकिन पापा के साथ तो अब तक उतना क्लोज रिलेशन भी नहीं बना है, तो उनके साथ रह नहीं सकते। केजिया का अलग सा बेड है, तो एलिस ने केजिया को उनके बेड में लेटा दिया। और एलिस को तो अपने घर जाना पड़ेगा, वो वहाँ पे रुक नहीं सकती, वर्कर है, कुक है, मेड है, तो फिर वो डे टाइम में ही काम करके चली जाती है रात तक। So now the next quotation. This is also important. You need to align it. What will I do if I have a nightmare? Interrogation है, तो देखो interrogation को हम लोग assertive जैसा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है।
Kezia says, what will I do if I have a nightmare? यदि रात को nightmare means a bad dream, यदि बुरा सपना आए तो मैं क्या करूंगी? What will I do? Alice asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I cannot stay in the dark. It all gets whispery. Whispery. So whispery indicates what? Something as if is spelling in her ears. उनको ऐसे लगता है जैसे कोई उनके कानों में कुछ बुदबुदा रहा है, फुसफुसा रहा है ना, मतलब कुछ डरावना। और अंधेरे से तो छोटे बच्चे वैसे भी डरते हैं। केजिया को आदत नहीं है अकेले सोने का, उनका बेड अलग जरूर है, लेकिन जब भी उनको डर लगता है या फिर ऐसा दादी माँ को महसूस होता है, सो ग्रैंड मदर टेक्स हर, है ना, उनको लेके चले जाते। लेकिन आज तो ग्रैंड मदर भी नहीं है, मदर भी नहीं है, और घर पे जो पापा है वो तो बच्ची के लिए काफी खड़ूस है, जायंट है, मॉन्स्टर है ना, फीलिंग लेस है, स्टोन हार्टेड है। तो इतना कुछ कीजिया के माइंड में है, बट एक्चुअली नथिंग ऑफ दैट शॉर्ट इज in a father, nothing of that short father carries within him, or he pretends, he shows that to her. ऐसा एक्चुअली में कुछ नहीं है, बट इट वाज सिंपली कीजिया हु वाज फीलिंग सच that father is giant like, monster like, feelinglessness, cold blooded, ऐसा कुछ नहीं है ना, it was her feeling, her opinion, that is going to vanish after a particular age, after a particular maturity level. So see the following paragraph, point number 10 में ही अगला जो है, you just go to sleep child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor पा, फादर को बोलेंगे, है ना। तो एलिस समझा रही है कि पापा देखो दिन भर काम करके थके हुए हैं, है ना। पुअर यहाँ पे, पुअर का मतलब गरीब नहीं है, बेचारा, हेल्पलेस। तुम्हारे पापा भी अब क्या करेंगे, दिन भर मेहनत करते हैं, और कौन सा काम करते हैं ये अब तक हमें पता नहीं चला है, राइट। वो क्या काम करते हैं, तो हो सकता है अब यदि वो लेबर वाला काम करते हो, मीन्स शारीरिक श्रम करते हो, तो जाहिर सी बात है दिन भर कोई यदि शारीरिक मेहनत करेगा तो शाम को आने के बाद और कुछ करने का मन नहीं होगा, या फिर जल्दी नींद आ जाएगी। तो जल्दी नींद आ जाने का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने बच्चों के प्रति केयरिंग नहीं है ना। बट एक समय में छोटे बच्चों को लगता है, जब वो उतना काम के बारे में, आउटडोर एक्टिविटीज के बारे में नहीं समझ पाते। You just go to sleep, child, said Alice. उनका सॉक्स को पुल करते हुए, मोजे को निकालते हुए बोले, and don't you scream, scream मतलब होता है चिल्लाना, and wake your poor pa, अपने पापा को जगा मत देना इस तरह से। But the same old nightmare come, तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी क्वेश्चन बनेगा, है ना, कि सेम ओल्ड नाइटमेयर कम, वो बुरा सपना, और सेम सपना, तो ऐसा कौन सा सपना है जो केजिया को हॉन्ट करता है। और मैंने बताया HAUNT, हॉन्ट मीन्स फ्रीक्वेंटली विजिटिंग प्लेस, आई टोल्ड यू बिफोर। Okay, so the same old bad dream came to her, nightmare came to her, और उस सपने में क्या रहता है, एक बुच्चड़ रहता है। बुच्चड़ समझ रहे हो, कसाई को बोलेंगे, काटने वाले, मीट वीट काटते जो है उनको बोलते हैं बुच्चड़। तो एक बुच्चड़ है उनके सपने में, बुरे सपने में। ओके, बुच्चड़ विथ अ नाइफ एंड अ रोप, रस्सी लिए हुए अपने कंधे पे लटकाए हुए होंगे, और चाकू है, नाइफ है ना, धार वाला वो बड़ा सा चाकू। Who came nearer and nearer, smile that dreadful smile। अब dreadful smile कैसे होगा, वो रावण वाला, असुर वाला स्माइल, है ना। So, तो सपने में आता है, बुच्चड़ है, एकदम भयानक दिखने वाला, मॉन्स्टर टाइप, है ना। एक तरफ रस्सी है, हाथों में चाकू लिया हुआ, हा करके ऐसे ही यूजलेसली हंस रहा है, जैसे असुर हंसा करते हैं, हम लोग देखते हैं मिथोलॉजिकल स्टोरीज में। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. Whilst he could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" बस ये चिल्लाए हुए। She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. तो अब हाथों में चाकू लिए आया, और सपने में ऐसा होता है, मतलब कुछ ऐसा भयानक कैरेक्टर आ जाए तो हम लोग भाग नहीं पाते, हम लोग वहीं पे ही रहते हैं, ठीक है, और पूरा पसीने से भीग चुके होते हैं। तो she could not move, she was still there, she was silent there,
ठीक है। तो डरी हुई है बहुत ज्यादा और चिल्ला उठी वो अचानक से, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। ग्रैंडमा के साथ सोने का आदत है, लेकिन ग्रैंडमा तो अभी है नहीं। तो जैसे उनका आंख खुला, वो क्या देखे कि पिताजी उनके सामने में उनके पापा आए हुए हैं और हाथों में कैंडल लिए। तो क्या बच्ची और डर गई होगी कि देखो भूत भी आ गया, मॉन्स्टर जैसे दिखते थे, अभी अंधेरे में कैंडल लेके वो आए हैं यहाँ। तो ऐसा नहीं है कि और भी वो डर गई होगी, क्योंकि ऐसे डरावने माहौल में उनको कोई अपना चाहिए था। सो उन्होंने आवाज सुना ग्रैंडमा करके बच्ची चिल्ला रही है, तो फिर वो आ गए, कैंडल जलाए, है ना, और बच्ची के रूम में आए। दोनों का जगह अलग अलग था, रूम अलग अलग था, क्योंकि अकेले तो बच्ची अब सोएगी नहीं, और पापा का अब तक उनको आदत है नहीं। लेकिन अब यहाँ पे जरूरत पड़ी, तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तो बनाना पड़ेगा ना, आपस में एक समन्वय। ओके, सो कैंडल इन हिज हैंड, व्हाट इज द मैटर, ही से, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, व्हाट्स द मैटर। She replied, "Oh, a butcher, a knife. I want granny." Granny grandmother को बोलेंगे। Okay, a butcher, a knife, जो उनका रेगुलर सपना हुआ करता था, वही सपना आया। He blew out the candle. तो हाथों में जो कैंडल लिया हुआ था उसे blew out is the past tense of blow out. Blow out means होता है फूकना, बुझा देना, फूक के बुझा देना। Bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. तो कैंडल लेके आए थे उन्होंने, कैंडल को बुझाया, है ना, थोड़ा बेंड होके झुक के बच्ची को गोद में उठाया और फिर अपने बिग बेडरूम में लेके गए, अपने रूम में लेके गए। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. तो पेपर बेड पे ही पेपर रखा हुआ था, पेपर को साइड किए, वो एक तरफ किए और बच्ची को रखा, और एकदम टकअप, टकअप मतलब होता है लगा के, तो यहाँ पे गले से लगा के, सीने से लगा के, क्योंकि अब उस छोटी बच्ची का केयर करने वाला यहाँ पे एट प्रेजेंट कोई नहीं है बिसाइड्स फादर, पापा के सिवा। ओके, so then Kate tugged up the child. He lay down beside her. तो ठीक पापा के बगल में वो लेट गई, सो गई, half asleep still, still with the butcher's smile all about her it seemed. तो अभी भी वो पूरी नींद में गई नहीं है, सपना पूरा माइंड से आउट हुआ नहीं है, अभी भी वो बुच्चड़ का जो स्माइल था वो लग रहा है कि आंखों के सामने है, यहीं पे कहीं पे है, मतलब बुच्चड़ यहीं पे हंस रहा है कि अच्छा पापा के साथ आ गए तो क्या मैं छोड़ दूंगा, छोड़ने वाला नहीं हूँ, देखो हाथ में चाकू है, रस्सी भी है, बांध के लेके जाएंगे, फिर बुच्चड़िंग करेंगे। So who blew, it was the father, क्योंकि अब कैंडल जलता हुआ, कैंडल के साथ तो बच्ची को दोनों हाथों से नहीं उठा सकते गोद में। ओके, सो इट वाज द फादर हु ब्लू आउट द कैंडल, कैंडल को बुझाया और फिर दोनों हाथों से बच्ची को गोद में उठा के लेके गए, ठीक है, अपने बेड में। तो अभी भी अब पूरी तरह से बुच्चड़ गया नहीं है सपनों से, हाफ अस्लीप है वो। ओके, जैसे फुल अस्लीप हो तो हो सकता है फिर से आ जाए। सी crept close to him. Crept is the past tense of creep. Creep मतलब होता है रेंगना। तो अब थोड़ा घिसक के पापा के और क्लोज आ गए, पापा के शर्ट को पकड़ के एकदम टाइट होल्ड करके, जैसे पापा को, अब पापा को गले से लगाएंगे, हाथ तो पूरा पहुंचेगा नहीं, छोटी बच्ची है अभी, छोटा छोटा हाथ है, तो उनके शर्ट को पकड़ के उनके सीने से लग के वो सोई हुई है, और इस तरह से जब सोई है तो उनका जो कान है वो ठीक उनके चेस्ट पे है, एंड सी हियर द हार्ट बीट लाउड एंड क्लियर। तो अब वो हार्ट बीट को महसूस कर पा रही है, लाउड एंड क्लियर, है ना, और हार्ट बीट ने जैसे उनको फील कराया कि जैसे हम लोग पापा को समझते थे दैट ही इज स्टोन हार्टेड, इट्स नॉट सच, वो स्टोन हार्टेड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं इस तरह से इससे पहले अपने पापा को ऐसे कभी हग नहीं की थी, ऐसे कभी गले लगाया नहीं था, या फिर उनके सीने पे सर रख के कभी सोई नहीं थी। तो ये पहला मौका है पॉसिबली, जब तक जब से केजिया को होश है, तभी तो ये दूरी बनी दोनों में, है ना। तो ये जरूरी है कि हम अपनों को तो गले जरूर लगाएं। ओके, सो व्हाट शी थिंक्स फर्दर, half asleep, still with the butcher's smile all about it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt.
snuggled, देखो मीनिंग दिया हुआ है, moved into a warm comfortable position close to another person, so we can take the sense of hug, है ना, वो गले लगा के अपने पापा को, तो हाथ तो पहुंच नहीं पा रहा था पीछे तक, तो शर्ट पकड़ के एकदम क्लोजली वो अपने पापा के साथ चिपक के सोई हुई है. Okay, and she felt tightly to his shirt, tightly, शर्ट को पकड़े हुई है, एंड हर हेड वाज अंडर हीज आर्म. ओके, तो उनके आँख के ठीक नीचे में उनका सर है, एकदम वो दुबक के पापा को गले लगा के सोई हुई है. वी कैन इमेजिन द सीन, वी कैन इमेजिन द कंडीशन. देन द डार्क डिड नॉट मैटर, और जब उनके हीरो, उनके सुपर हीरो उनके साथ है, उनके पापा उनके साथ है, अब ये अंधेरा उनको नहीं डराएगा. अब वो मॉन्स्टर लाइक बुचड़ कुछ नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि उनसे बड़ा बुच्चड़ इनके पास है. ऐसा क्या? उनसे बड़ा मॉन्स्टर इनके साथ है. It was not such. It was the security of a father that she realized, that she felt. Okay? तो ये मत समझना कि तुम मॉन्स्टर हो तो क्या हुआ, तुमसे बड़ा मॉन्स्टर मेरे बगल में खड़े हुए हैं, है ना, क्योंकि वो भी अपने फादर को जाइंट समझती थी एक टाइम पे. तो ऐसा नहीं है. एंड टू एवरी गर्ल देयर फादर इज देयर हीरो, राइट, द फर्स्ट हीरो, द सुपर हीरो. Then the dark did not matter. She lay still. अब वो शांत हो गई. Here, पापा ने बोला. Here, rub your feet against my leg and get them warm. Underline the quote. Okay, said father.